बहुत ही सत्कारयोग टीचर साहिबान, स्कूल मुखी साहिबान, ਡੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੂਸੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਡੂਸੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਸੇ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9th 10th 11th 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਾਰਟਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਦੋਂ 6-7-8 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਵਾਓ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ PPT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ PPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਪੈਰਲਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਪੈਰਲਲਡ। ਇਹ ਅਨਪੈਰਲਲਡ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹਨ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ फ़ोटो खिंचवा के तो फ़ोटो भेज रहे हैं। बहुत सारे NRIs वो फ़ोटो खिंचा के भेज रहे हैं, पंचायतें हैं वो फ़ोटो खिंचवा के भिजवा रहे हैं। मैं ये कहना चाहना कि बेशक वो तारीफ़ करते हैं, मैनू भी भेजते हैं, महकमे के दूजे सीनियर अफसर हैं उन्होंने भी भेजते हैं, पर मैं एक विशेष तौर पर कहना चाहूँगा इस चीज़ का सारा जो क्रेडिट है वो साडे टीचर साहबान साडे स्कूल मुखिया नूं तुहानूं सारिआं नूं जांदा है। इहदे पिछे तुहाडी मेहनत है। बहुत सारा डिपार्टमेंट काम पहला भी करता रहा, डिपार्टमेंट हुण भी करता रहा, पर जे आपां ये समझते हैं कि हुण काम जे अच्छा हो रहा तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो साडे अध्यापकों नूं ही जांदा है। अध्यापक इतना वधिया तरीके नाल काम कर रहे हैं। मैं ये चीज़ां थोड़ी जी जनरल गल्लां करन तो बाद कुछ फिक्स टॉपिक्स बनाए हैं जिहड़ी कि गल्लां मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहांगा आज, और वो इस स्लाइड दे बनाई है, प्रेजेंटेशनस बनाई हैं, कुछ 10-12 स्लाइड्स हैं, ज़्यादा नहीं है। और जिवें कि तुहानूं पता है कि एडूसैट ते ये बाई डायरैक्शनल नहीं है, ये यूनी डायरैक्शनल ही कम्यूनीकेशन है। कहने का भाव है कि इत्थों ही ब्रॉडकास्ट हो सकता है। तुहाडे वल्लों अज जो तुहाडे जो विचार हैं वो सानूं आज सुनन तो नहीं मिलणगे। मैनूं इस गल का बहुत बहुत अफसोस है, पर फिर भी तुसीं WhatsApp के मैसेज के राहीं तुसीं अपनी जो गल है वो तुसीं कन्वे कर सकते हो। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत जी आਇਆਂ ਨੂੰ इस गल के वास्ते। तो जे मैं सब तो पहला जे स्टार्ट करा PPT दे विच, तो पहली चीज़ है इनरोलमेंट। ईच वन ब्रिंग वन, ये अपना एक स्लोगन सीगा जिसनों लेके इनरोलमेंट वधाई तुसीं सारिआं ने। इन्ना काम इस साल होया, इन्ना काम होया जिहदा मतलब कोई मिसाल पास दे विच नहीं है, इंडिपेंडेंट इंडिया दे विच नहीं है। तकरीबन 15% इनरोलमेंट तुसीं सारिआं ने मिल के वधाई है। और मानयोग CM साहब ने भी 7 नवंबर नूं जदों फंक्शन किया और बाद दे विच 18 दिसंबर नूं फिर 31 दिसंबर नूं भी होया। तीनों ही ओकेजन ते मानयोग CM साहब ने तुहाडे वल्लों कीते गए काम की शलाघा की है। ये सिर्फ तुसीं ही कर सकते सी, ये इनरोलमेंट वधाई है। मैं इस गल के बारे जो बहुत लोग पूछते भी है कि किस तरीके नाल ये चीज़ां वधाइयां, मतलब इनरोलमेंट किस तरीके नाल वधी है। जो साडे अध्यापकों द्वारा किए गए काम किस तौर तरीके नाल किहड़ी स्ट्रैटजी उन्होंने अपनाई इनरोलमेंट के बारे की कुछ काम किया, तो लोग अचंभा नहीं करते। और बहुत लोगों ने एलीगेशनस भी, नॉट एलीगेशन पर क्रिटिक्स, जो आम तौर पर आलोचना करने वाले लोगों का घाटा नहीं है, चंगी गल है वो आलोचना करते हैं, साडा और सुधार आ जाता है। पर उन्होंने ये कहा कि जी ऐतकी कोविड सीगा इस करके तुहाडे सरकारी स्कूलों के विच इनरोलमेंट वध गई। पर मैं एक गल कहनी चाहांगा कि जे यही गल है तो बाकी स्टेटां दे विच भी कोविड सीगा, पूरे हिंदुस्तान से सीगा, पूरे वर्ल्ड दे विच सीगा। किसी भी मुल्क दे विच या किसी भी स्टेट दे विच साडे ध्यान च नहीं है कि जिथे 15% इनक्रीज इन इनरोलमेंट हुई होए। तो इसका सारा क्रेडिट तुहानूं जांदा है। और मैं तुहानूं ये रिक्वेस्ट यही करनी चाहांगा मेरे वालों कि यही चीज़ आपां मेनटेन करके रखनी है। अगले आने वाले साल दे विच भी आपां मेनटेन करनी है, बिल्कुल होएगा। और सानूं अपने आप ते विश्वास होना चाहिए। मैनूं तुहाडे ते पूरा यकीन है, मैनूं अपने आप ते यकीन नहीं है, पर मैनूं तुहाडे ते यकीन है। दूसरी जिहड़ी चीज़ हैगी है, कोविड का एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम सीगा, जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं आपां सारिआं नूं पता है। ऑनलाइन क्लासिस जिस तरीके नाल साडे अध्यापकों ने लईआं, दूरदर्शन के राहीं ब्रॉडकास्ट होया, किस तरीके नाल बच्चों नूं इंगेज करके रखा लगातार 8 महीने, कोई छोटी गल नहीं है। किसी भी स्टेट दे विच इस तरह की मिसाल जो है देखने को नहीं मिली जिथे कि रेगुलर टाइम टेबल इस तरह जाता होए और बच्चे क्लासां अटेंड कर रहे हैं, अध्यापक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, WhatsApp ग्रुप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो मैसेज, और गुरुद्वारा के राही, गुरुद्वारा साहबान के राही और कोई दूसरे स्थान है, सांझे स्थान है, उन्होंने राही मटीरियल वंडाना, मिड डे मील का मटीरियल भी बच्चों तक पहुँचाना। और बहुत सारे टीचर्स ने तो बच्चों की मदद भी की है शुरुआती तौर पर। जदों कुछ लाइफ कोविड के इनिशियल डेज के जदों कंप्लीट लॉकडाउन सीगा, तो गरीब माँ बाप जो किसी दाड़ी दप्पे ते भी नहीं जाते थे, उस वेले साडे अध्यापकों ने उन्होंने मतलब फाइनैशियल हैल्प भी की है। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद इस दे लई। सो कोई भी लफ्ज़ इहदे लई वरते जाण बहुत ही घट है। अगली चीज़ मैं तुहानूं दसना चाहांगा और तुहाडा अगेन तुहाडा धन्नवाद कि EBC नूं जिस तरीके नाल पॉपुलर किया, ये EBC है इंग्लिश बूस्टर क्लब्स, और ये सुझाव भी साडे अध्यापकों का सीगा। जदों इनरोलमेंट वध रही सी, इनरोलमेंट दा ड्राइव चलती पई सी अपनी, उदों साडे कुछ अध्यापकों के वल्लों ये सुझाव आया एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के मैनूं अजे भी याद है, वो शायद सैटरडे का दिन सीगा, पर मैनूं शायद डेट याद नहीं है।
ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਮਾर्ट स्कूल आप बना लिए, पर जो माँ बाप एक आम माँ बाप है, जो गरीब माँ बाप भी है, वो कुछ एक्सपैक्ट करता है साढ़े स्कूलों तो। और जिहदे विच एक बहुत वड्डा मुद्दा है, वो ये है कि वो माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा भी अंग्रेजी बोले। साडी मात भाषा पंजाबी नूं पूरा आदर सत्कार सम्मान दिंदियां होइआं साडा अपनी मात भाषा के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जिस तरीके नाल आपां हुण भी मीटिंग कर रहे हैं पंजाबी मात भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ कर रहे हैं। जे मैनू कोई कहे कि नहीं जी तुसी सिर्फ अंग्रेजी बोलो, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करांगा, वो गल नहीं है। पर एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदी, मैनू काम चलाओ अंग्रेजी आंदी है और मैं अपना काम अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ निकाल सकदा। यही एक चीज़ है ਜਿਹੜੀ कि ਆਪਾਂ EBCs ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि साढ़े बच्चों ਨੂੰ एक वर्किंग नॉलेज ये होनी चाहिए। जो इंग्लिश का फोबिया है वो नहीं होना चाहिए। साढ़े अध्यापकों ने जो मेहनत ये की, और मैं गल ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, जोर पा के कहना चाहूँगा कि EBC ਦੇ ਵਿੱਚ ना सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने वाले अध्यापकों ने, पर नॉन सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान है। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स, हिंदी टीचर्स, पंजाबी टीचर्स, SST टीचर्स, बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया है। मैथ्स टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स, ईवन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है साडा, वो चाहे भावें SLAs होण, क्लर्क्स होण या और कोई दूसरे होण, लाइब्रेरियंस होण, उन्होंने भी ਇਹਨੂੰ एक मुहिम बना लिया और उस तो एक विश्वास होया कि असीं की कुछ कर सकते हैं। साडे सिस्टम की, साडे डिपार्टमेंट की, साडे अध्यापकों की कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये एक बहुत वड्डी चीज़ है। मैं तुहानूं इस गल दे बारे वास्ते वधाई देनी चाहांगा। नैक्सट, बड्डी ग्रुप्स। इन्हां दिनां दे दौरान बड्डी ग्रुप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाहेवंद साबित हुए हैं और साडे अध्यापकों ने बड्डी ग्रुप्स दे विच जो तजर्बे किए कि पहले बड्डी ग्रुप्स कोई भी बना ले सीगे, बाद दे विच जो एको एरिया दे विच रहने वाले बच्चे हैं उन्हां दा बड्डी ग्रुप बनाए। पहले एको क्लास के बच्चों की बनाए, फिर बाद दे विच सुझाव यह भी आया कि दूसरी क्लासां दे बच्चों को भी बड्डी ग्रुप दे विच शामिल किया जाता है। बड्डी लीडर्स नूं तैयार किया गया। ये बड्डी ग्रुप्स दे विच बड़े तजर्बे, जिवें कि एक अध्यापक भी उहदे विच शामिल होया। तो एक बहुत वड्डी गल है। मैं तुहानूं बधाई देनी चाहांगा कि बड्डी ग्रुप एक इहो जी चीज़ है जिन्हों कि मानयोग CM साहब ने ਜਦੋਂ 7 नवंबर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फंक्शन ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ और उस दे विच भी बड्डी ग्रुप्स का ਜਿਹੜਾ जो कॉन्सैप्ट सीगा, ये इसकी बहुत ज़्यादा सलांघा की है। मैं मानयोग CM साहब वालों की गई सलांघा नूं तुहाडे तक पहुँचांदा और मैं रिक्वेस्ट करांगा तुहानूं कि जिस तरीके दे नाल तुसीं बड्डी ग्रुप्स का पूरा फ़ायदा उठाया, आने वाले समय दे विच बड्डी ग्रुप्स का आपां नूं पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बच्चों की जिस तरीके दे नाल आवाज़ सुनने नूं मिलदी है, और अजकल एक नवी चीज़ आपां शुरू की है, जिवें कि तुहानूं पता है ईच वन आस्क वन, वो बड्डी ग्रुप का ही पार्ट है, वो अलग से चीज़ नहीं है, जिहदे विच हरेक बच्चा एक सवाल पूछता है, बाकी बच्चे उसका सवाल का जवाब देंगे हैं। तो इस तरीके दे नाल मिशन 100% की भी तैयारी हो रही है। बच्चों के विच एक बोलने का एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, एक टीम स्पिरिट, ग्रुप लीडर, बहुत सारा मतलब चीज़ां, बड़ी सारी चीज़ां हैं जिहड़ी कि इत्थे गिनाई नहीं जा सकदियां। पर बड्डी ग्रुप्स के लिए मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहांगा। इहदी एक इन्नी चंगी इनोवेशन सीगी तुहाडे वल्लों, और इनू सब तो वड्डी गल ये है इनोवेशन इस दे नाल नाल इनू लागू कराउणा, को जिस तरीके दे नाल लागू कराया। हुण बहुत सारे अध्यापकों ने बड्डी ग्रुप्स आपस दे विच बड्डी ग्रुप्स बना लिए, तो साडे अध्यापकों के भी बड्डी ग्रुप बने, तुसीं आपस दे विच बना लिए, स्कूल मुखिया ने बड्डी ग्रुप्स बना लिए, और तो और हुण साडे DO साहबान ने भी बड्डी ग्रुप बना लिए, जिहदे विच 2-2 जिले आपस दे विच मिले हुए हैं और वो सांझे तौर पर मीटिंगां करते हैं अपने सांझे तौर पर डिस्ट्रिक्ट्स दी, स्कूल हेड्स दी, या जिस तरह भी वो करनी चाहन। तो ये एक बहुत वड्डी गल है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। एक जिला दूसरे जिले नूं अपने नाल लेके तुरदा है, तो ये एक तरह का मतलब एक यूनीक एक्सपेरीमेंट है। तुहानूं इस गल दे वास्ते बहुत बहुत वधाइयां। वेलकम लाइफ नूं तुसीं स्टार्ट किया ड्यूरिंग दीज कोरोना टाइम्स, कोविड टाइम्स के दौरान। ये एक नवी चीज़ सीगी, और जिस तरह का हुंकारा मिलिया साडे अध्यापकों द्वारा इस चीज़ का, शुरुआत साडे अध्यापकों की सीगी, कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स ने उन्होंने ये आइडियाज़ मतलब अपने आप दे विच कोविड के टाइम के दौरान ये सोचा। रिकॉर्ड टाइम के किताबां तैयार कीतियां गईयां। ये कोई छोटी गल नहीं है कि प्री प्राइमरी तो लेकर ना और 12वीं क्लास तक वेलकम लाइफ की किताबां बन जान, और वो किताबां बच्चों तक पहुँच जान, और मटीरियल जो जिस तरीके का ये बनया है वो दूजी स्टेटां भी साडे तो ये मटीरियल लेके गई हैं। हुण आपां इहनूं नाम दिता है वेलकम लाइफ, दूजी स्टेट शायद इहदे बारे अपना अपना कुछ सोच रहे हैं, पर तुहानूं ये शायद याद होगा कि ये वेलकम लाइफ नाम आपां इसी करके दिता सीगा कि कोविड के दौरान बहुत
ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਪੈਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਓਵਰ ਸ਼ੂਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾ, ਬਟ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सोने स्कूल सोना फर्नीचर, सिर्फ 15 दिन या 20 दिन 3 हफ्ते हुए हैं, पर ये जो मुहिम जिस तरीके नाल चल रही है, सोना फर्नीचर जितना भी अपना फर्नीचर सीगा उन्होंने रिपेयर करा लिया। उन्होंने बच्चों दे जो कलर चंगे लगते हैं उसके हिसाब नाल उहदी कलर कोडिंग करा ली। साडे मुख अध्यापकों ने, साडे स्कूल मुखिया ने, साडे टीचर साहबान ने अपने लैवल ते, और बच्चे हुण देख के, फोटो में देख के, और जो बाहर के लोग जो फोटो देखते हैं तो उन्होंने यकीन ही नहीं होता कि वो फर्नीचर है। और इस दे राहीं तुसीं एक बहुत वड्डा काम किया है, शायद इस गल का एहसास नहीं है। तुसीं इस डिफिकल्ट टाइम दे विच किन्ने ज़्यादा इन्वायरमेंट की मतलब बचत की है, किन्ने ज़्यादा लकड़ की बचत की है, किन्ने ज़्यादा दरख्तों की बचत की है, जिस दे राहीं कि पुराना फर्नीचर सीगा उन्होंने रिपेयर करा के और उन्होंने ठीक ढंग नाल उन्होंने यूज़ कर रहे हो, सोहना बना के, जिहदे विच बच्चों का उत्थे बैठण नूं मन करदा है। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है इस गल दे वास्ते, इस इनोवेशन दे लई। कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे कोल कि जिस दे राहीं तुहाडी इस गल दे वास्ते तारीफ करिए। तो तुहाडा बहुत सारिਆਂ ਦਾ ही बहुत बहुत धन्यवाद है, साडे अध्यापकों का, स्कूल मुखिया का, टीचिंग नॉन टीचिंग हर किसी मुलाजम का इस मुहिम के बारे बहुत वड्डा एक तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद है जी। ईच वन आस्क वन, ये बड्डी ग्रुप का पार्ट है, पर आजकल बड़ा पॉपुलर तुसीं कीता हुआ है। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, अध्यापक साहबान बच्चों के वॉइस मैसेज करके ऊपर तक, मतलब मेरे तक भी आते हैं, मैनू भी भेजते हैं, डीओ साहबान नूं भेजते हैं, डीओ साहबान भी मैनू भेजते हैं। बड़ा चंगा लगता है कि किस तरीके दे नाल साडे बच्चे पूरी तरह से इस माहौल दे विच भी पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। तुहाडा अगेन मैं फिर एक बारी धन्यवाद करना चाहांगा, और बस यही बेनती करनी चाहांगा कि इस चीज़ नूं आपां चालू करके रखिए। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग है। ये बच्चों की जिहड़ी बोरीयत है वो बिल्कुल भी इस दे नाल नहीं हो रही। एक्स्ट्रा क्लासेस, ये मतलब दूजा साल तो है ही, शायद ये तीजा साल है जो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस की मुहिम नूं मैं देख रहा। ऐतकी शायद मैनू सीगा कि शायद एक्स्ट्रा क्लासेस इन्नी ज़्यादा नहीं लग सकणगियां, पर हैरानगी की गल है कि इन्नी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं। असी इन्ने ज़्यादा पोस्टर भी भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यापकों को एक्नॉलेज करिए, उन्होंने एप्रीशिएट करिए, पर फिर भी एक ग्रीवांस है अध्यापकों का, और बिल्कुल जायज़ ग्रीवांस है कि सारे अध्यापकों की फोटो नहीं आ रही। मैं तुहानू यकीन दिलाना कि सानू चाहे गिणती वधानी पे, कुछ और काम करना पे, चाहे सुबह शाम और टाइम लगाना पे, बट ऑल आवर टीचर्स हु आर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस, they will definitely get all their posters, all their photographs on the activities Facebook page जो कि अपना डिपार्टमेंट है। उत्ते एक डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी बनती है, मेरी भी ड्यूटी बनती है, जो साडे कोल अपने जो दूसरे जो अफसर साहबान बैठे हैं, मेरे को डायरेक्टर CRT साहब बैठे हैं, साढ़े सारे की एक ड्यूटी बनती है। एंड वी अश्योर यू कि दिस विल बी डन। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कोई लफ्ज़ नहीं है तुहाडी अपने अध्यापकों की किस तरीके नाल तारीफ करिए। कड़ाके की ठंड दे विच भी अध्यापक क्लासेस लेके एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, शाम को घरे बैठ के, छुट्टी वाले दिन भी ले रहे हैं, स्कूलों के विच जाके भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं आजकल। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, इस मुहिम नूं तुसीं चालू रख रहे हो, तो कोई लफ्ज़ नहीं है तुहाडा धन्यवाद करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एडुकेयर ऐप, ये एक इन्नी वड्डी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि साडे अध्यापकों ने दिता है, और ये पहले ही अध्यापक चलाते पे सी इस चीज़ नूं। फिर एक गल डिपार्टमेंट के बाद ध्यान च आई, एक मीटिंग के दौरान ये गल समझ आई, फिर असीं इहनूं अडॉप्ट किया। तो मेरा कहने का भाव है कि इहदे विच इनीशिएटिव अध्यापकों का पहला ही सीगा। हुण एडुकेयर ऐप एक इहो जी ऐप है, किसी डिपार्टमेंट की किसी और स्टेट दे विच इहो जी एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन नहीं है जिहदे सब कुछ मिले, टैक्सट बुक तो लेके स्टडी मटीरियल, क्वेश्चन बैंक, टीचर के लिए मटीरियल, बच्चों के लिए मटीरियल एंड ऑल सबजैक्ट्स। ये कोई छोटी गल नहीं है, एक बहुत वड्डी गल है।
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੂਕੇਅਰ ਐਪ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਕੁਝ ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚ ਕੁਇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਇਜ਼ਿਜ਼ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਬੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, फ़ोन करके उठाते कि उठ के पढ़ो बेटा। बहुत सारे स्कूल मुखी प्रिंसीपल साहबान बच्चों को उठा रहे हैं। कई पेरेंट्स ने मैनू फोन आया कि जी साढ़े बच्चों को टीचर उठा देंगे हैं। बहुत चंगी गल है सर, असी सानू पहला ये यकीन नहीं सीगा कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक और मुख अध्यापक और स्कूल मुखी इन्ना ज़्यादा इंटरस्ट लेंगे हैं। और वो कहते हैं कि जी प्राइवेट स्कूल तो सिर्फ फीस लेनी जानते हैं, जो एक्चुअल जो पढ़ाई हो रही है वो तो सरकारी स्कूलों के विच हो रही है। और उसी चीज़ का एक नतीजा कि साड़ी वधी हुई इनरोलमेंट इस साल तकरीबन 15%, जो कि छोटी गल नहीं है। पंजाब अचीवमेंट सर्वे, ये अगली गल है। जिस तरीके दे नाल कोविड के दौरान तुसीं जे इहदे विच जो काम किया, बहुत वड्डी गल है, कोई छोटी गल नहीं है। मैं तुहाडा धन्नवाद ही करना चाहांगा इहदे विच, क्योंकि और भी कई मुद्दे हैं तो मैं इहदे विच ज़्यादा टाइम तुहाडा ना लैंदा होया एक बार मैं फिर धन्नवाद करना चाहांगा कि पैस नूं NCERT ने भी एक्नॉलेज किया है और इसकी सलांघा की है। जो स्टेटां की ग्रेडिंग होंदी है उहदे विच भी पैस नूं सानूं उम्मीद है कि पैस के डेटा नूं मन्निया जाएगा। असी ऑलरेडी भारत सरकार नूं चिट्ठी लिखी है कि साडे अध्यापकों का ये इनीशिएटिव सीगा, बिल्कुल NCERT दे वांग सीगा। रादर NCERT ने यह गल मन्नी है कि जी ये जो नैस दे विच जो आइटम सीगे या नैस का जो स्टैंडर्ड सीगा उस तो भी बेहतर स्टैंडर्ड जो है वो पैस दे विच है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनस और इनू इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है साडे अध्यापकों का वो एक बहुत ही चंगा सीगा। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ही बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस न्यू इनिशिएटिव। NTSC और MMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਕੇ ਐਜ ਏ ਰਿਸੋਰਸ ਟੀਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। और NTSC ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन इस साल अपने 39,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये अपने आप दे विच एक रिकॉर्ड है। इसी तरह NMMS ਦੇ भी बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। असी हुण लिस्टां मंगवा रहे हैं, डेटा साडे कोल आ गया है। असी उन्हां सारे स्कूलों नूं एक्नॉलेज कर रहे हैं, एप्रीशिएट कर रहे हैं। साडी ड्यूटी बनती है जिन्हां ने अपने अपने बच्चों नूं पार्टिसिपेट करवाया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और ये भी सुझाव मिला है कि अगले साल की जी तैयारी हैगी है वो तैयारी हुण आपां अप्रैल तो स्टार्ट कर दिए। असी कोशिश करांगे कि इहदे लई जो भी तैयारी करनी है वो असी छेती तो छेती करने की कोशिश करांगे। ये साडे अध्यापकों का बहुत ही चंगा सुझाव मैनूं लग्या कि आम तौर पर आपां NTSC की तैयारी 2 महीने पहले शुरू कराते हैं, वो 2 महीने की बजाय सानूं हुणे तो ही तैयारी करानी चाहिए है। नैक्सट नाउ आखिर दे विच मैं मिशन 100% के बारे तुहाडे नाल करीब 5 मिनट या 7 मिनट लगाना चाहांगा। मिशन 100% जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता है, मानयोग CM साहब ने इनू लॉन्च किया इस साल के लिए 7 नवंबर 2020 नूं। इनू शॉर्ट दे विच आपां MSP एक नाम दिता है। ये भी एक सुझाव आया सानूं साडे किसी अध्यापक का ही, तो असीं हुण उत्थों एकदम इमीजिएटली इनू अडॉप्ट कर लिया। सो दिस इज़ मिशन 100% साल 2020-21। इसके लिए आपां की कुछ कर लिया है और की कुछ कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहांगा। और ऑलरेडी इतनी एक मुहिम चली हुई है, हर कोई अध्यापक
ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਪੈਸ 3rd ਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਰਿਸੋਰਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ तो शायद वो एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਸਲਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਲਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਮਿਸ਼ਨ 100% ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਫਰਟ 50% ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ, ਦਸੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 to 20% ਔਰ 21 ਤੋਂ 40%, 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। 0 to 20, ਦੈਨ 21 ਤੋਂ 40, ਦੈਨ 40 ਤੋਂ 60, 60 ਤੋਂ 80, 80 ਤੋਂ 100% ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਣਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈਡਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ PPTs ਵੀ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ PPTs ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि ये दो जो कैटेगरीज हैं, जे आप मिशन 100% ਨੂੰ लिए और ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। मिशन 100% के 3 ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव 100% बच्चा पास होना चाहिए, ये अपना एक ऑब्जेक्टिव है। मैं ऑब्जेक्टिव की गल कर रहा। दूजा ऑब्जेक्टिव साढ़े मैरिट के बच्चों की गिनती ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ होनी चाहिए है, यानी कि मोर देन 90%। और तीजा ऑब्जेक्टिव है जो हरेक बच्चा, जो एवरेज बच्चे के जो मार्क्स आते हैं वो बच्चे के मार्क्स 60+ होण। जे मान लो कि मैं मैट्रिक की, मेरे जो 60% नंबर से 62% नंबर से, तो वो 62 नंबर 62 की बजाय 67 हो, 67 की बजाय 70 हो, 70 की बजाय 72 हो, लाइक दिस। तो वो तीजा ऑब्जेक्टिव है जो आप एवरेज मार्क्स की गल करते हैं। ये जो मिशन 100% के जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, वो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये 2 कैटेगरी जी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साढ़े टीचर्स का एनालिसिस है। और इस दे विच भी जो 20 ਤੋਂ 40 या 21 ਤੋਂ 40% वाली कैटेगरी है, ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साढ़े लिए, सब तो ज़्यादा ईजी है। उसका कारण है कि ये बच्चों के लिए थोड़े जे नंबरों की लोड़ है। कहने का भाव कि इन्होंने बच्चों को बहुत ही घट एफर्ट की लोड़ है। जे थोड़ा जो एफर्ट आप कर लिए तो ये सारे बच्चों ने पास हो जाना है और साਡਾ रिजल्ट मतलब ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और ये चीज़ असी अध्यापकों तो और साढ़े स्कूल मुखिया तो सीखी है, जो PPT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ कि 21 ਤੋਂ 40% वाली कैटेगरी है, दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी नंबर 1। आवर प्रायोरिटी नंबर 2 0 to 20%। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ कि 0 to 10 एक कैटेगरी बनानी है, 10 to 20 बनानी है। जो 10 to 20 वाली ਜਿਹੜੀ कैटेगरी हैगी है, अगेन ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल एकदम आराम नाल पास हो सकते हैं। कहने का भाव है कि ये चीज़ आप ये 2 कैटेगरियां पर ध्यान दे लिए, विशेष तौर पर इन्होंने बच्चों को सिंपलीफाइड रीडिंग मटीरियल दिए, बच्चों की बार बार प्रैक्टिस कराइए, इन्होंने बच्चों के मतलब क्वेश्चन पेपर वगैरह लेके कराइए। तो मैनू लगता कि आप ये मिशन 100% का अपना जो MSP है उसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है आप बड़े आराम नाल इनू आप अचीव कर सकते हैं। नैक्सट, दसंबर टैसट के 80% और 90% तो वध अंक प्राप्त करने वाले मैरिटोरीअस विद्यार्थियों की लिस्टां आपने तैयार कर ली है। बहुत सारे अध्यापकों ने तैयार कर ली, बहुत सारे स्कूल मुखिया ने तैयार कर ली। कई स्कूल मुखिया ने तो अपनी डायरी दे वो फोटो लेके WhatsApp ग्रुपों के राही मैनू भेजियाँ। 3 या 4 एक्टिविटीज़ उन्होंने कीतियाँ। कहने जी ये असीं रोज़ाना इनू मोनीटर करते हैं, डेली पूछते भी हैं। रादर उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है सारे अध्यापकों का, उन्हों का मिलजुल के टीम वर्क काम कर रहे हैं।
जे किसी मिसाल के तौर पर मान लो मैथ्स दे विच जे थोड़ी जी कमी है तो उत्ते मैथ्स के टीचर की मदद के लिए साढ़े हिंदी अध्यापक, पंजाबी अध्यापक, SST अध्यापक वो अगे आ गए। कई कई जगह ते साढ़े स्कूल मुखी बहुत बहुत मान है मैनू साढ़े स्कूल मुखिया ते कि कितना ज़्यादा वो काम कितनी ज़्यादा रिवोल्यूशन लिया सकते हैं कि उन्होंने अपना स्कूल मुखी का काम छड़ के और एकदम बिल्कुल जो क्राइसिस आया या मौका आया तो टीचर बन गए हैं और सुबह सुबह एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। स्कूल मुखी खुद ब्लैक बोर्ड पे चौक डस्टर लेके आप लगे हुए हैं। बड़ी हैरानगी की गल है किसी स्टेट दे विच इस तरीके दे नाल मैनू नहीं लगता कि स्कूल मुखी इस तरीके नाल काम कर रहे हैं और उन्होंने ये लिस्टां बनाई। तो स्कूल मुखी 3 या 4 चीज़ां दिखाते हैं जो मैनू याद है ऑफ हैंड, मेरे को हुण मैनू लभना पैना, नहीं तो मैं WhatsApp भी तुहाडे नाल साझा करदा, कोशिश करांगा तुहाडे नाल शेयर करा कि एक तो 0 to 20% तो 40% वाले बच्चों की गिनती, स्पैसीफिक बच्चा किहड़ा बच्चा है क्लास वाइज, दैन और सब्जैक्ट वाइज। दूसरी गल 0 to 20 और तीजा 80% तो वध नंबर लेने वाले बच्चों की बच्चे कौन कौन है और उन्होंने बच्चों के नामों के आगे उन्होंने टेलीफोन नंबर, ताकि उन्होंने बच्चों के नाल उन्होंने माँ बाप के नाल बच्चों के नाल गलबात भी कर सकन। तो ये एक बहुत वड्डी गल है। और ये जो 3 या 4 इनिशिएटिव, बेसिक इनिशिएटिव्स स्कूल मुखी ले रहे हैं, अध्यापक ले रहे हैं, बहुत चंगी गल है। तो ये तुहाडे नाल एक साझा करने का मैनू आज मौका मिला, सो मैं सोचा कि तुहाडे नाल साझा करा ये गल। हाँ जी, ये एक्स्ट्रा क्लासेस की गल पहला भी हो चुकी है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल मुखी भी मैं जस्ट कह के हटिया कि स्कूल मुखी भी ले रहे हैं और साढ़े स्कूल अध्यापक साहबान भी ले रहे हैं। आई रियली फील सॉरी कि जे तुहाडे विचों कुछ अध्यापकों द्वारा एक्स्ट्रा क्लासेस ली जा रही हैं और उन्होंने मान लो कि एक्टिविटी फेसबुक पेज पर फोटो नहीं आ पाई है, तो मैं तुहानूं यकीन दिलाना कि वो आ जाएगी। असी अपना काम थोड़ा जा और ठीक सुधारने की कोशिश करांगे। जे किते एक लैप्स है तो उस लैप्स नूं असीं ठीक करांगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और साडे वल्लों ये मैं यकीन दिलाना कि डिपार्टमेंट वालों कि सारे उन्होंने सारे अध्यापकों को एप्रीसीएशन लैटर उन्होंने तक पहुँचते करावांगे जी। स्कूल मुखी 10वीं 12वीं जमात के विद्यार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं, तो मैनू थोड़ा जा आई एम सॉरी कि ये PPT की जी जो लैंग्वेज है ये थोड़ी जी ठीक नहीं है। तो अपने आप ही पहला काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, वो और ज़्यादा तो ज़्यादा करन। और स्कूल मुखिया भी मेरी रिक्वेस्ट है कि तुसी अपने ये अपने जिले के जो DMs हैं उन्होंने राही अपनी फोटोग्राफ्स भी तुसी भिजवाओ, ताकि असी वध तो वध तुहानू भी एक्नॉलेज करिए और तुहानू एप्रीशिएट भी करिए। और अपने एक्टिविटीज़ पेज पर असी अपने स्कूल मुखिया की भी, अध्यापकों की और स्कूल मुखिया की उन्होंने फोटोआं नाल ही उहदे विच आण। स्कूल मुखी ते संबंधित विशा अध्यापक टारगेट ग्रुप, ये पहला ही गल हो चुकी है। फोन राही जो राबता कर रहे हो, तुसी बुला रहे हो, बहुत ही चंगी गल है। माँ बाप के नाल राबता रखना बड़ा जरूरी है, बच्चों के नाल भी तुसी जो कर रहे हो वो भी बड़ा जरूरी है। और इनू बस कंटिन्यू रखो, ये मेरी बेनती है तुहानू जी। नैक्सट, हर एक विषय दे विच, क्योंकि आज सब्जैक्ट टीचर्स बैठे हैं, मैं इन्हों मैं बेनती करनी चाहूँगा और कि बहुत सारे सब्जैक्ट टीचर्स ने इस तरह की ये एक उपराले किए हैं जो कि मैनू तुहानू साझे करने का आज मौका मिल रहा है कि हर एक विषय के विच उन्होंने अपने टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं। एवरेज बच्चे के लिए किहड़े टॉपिक्स हैं और जो बच्चा थोड़ा जा अकैडमिकली कमज़ोर है उहदे लिए किहड़े टॉपिक्स हैं, हुशियार बच्चा है उहदे लिए किहड़े टॉपिक्स हैं। और वो टॉपिक्स उन्होंने बच्चों को रिगरसली मॉनिटर कर रहे हैं। एक दिन की उन्होंने मॉनिटरिंग है, आज बच्चे ने ये करके लेना, आज बच्चे ने ये करके लेना है, फॉलोड बाय द टेस्ट, द क्वेश्चन बैंक तैयार करके अध्यापकों ने देता है। तो ये एक बहुत ही वड्डी चीज़ है और बहुत ही चंगी चीज़ है। ये मैनू लगता है कि अपने मिशन 100% दे विच बहुत ही ज़्यादा लाहेवंद साबित होएगी। अपने को पिछले साल का भी तजर्बा है और ये इस साल का भी, तो इस तरीके नाल आपां लेके करना है। विशा अध्यापकों द्वारा सिलैक्टिड टॉपिक्स की वध तो वध दुराई कराई जा रही है, तो इनू और ज़्यादा करवाई जाए, बस ये एक तुहानू बेनती है। DMs BMs और शिक्षा सुधार टीम के जो इंचार्ज हैं, मैं एक गल स्पष्ट करनी चाहूँगा, वो टीम मैंबर भी आज इतने बैठे हुए हैं, इसी मीटिंग का हिस्सा है। DMs BMs शिक्षा सुधार टीम ਜਾਂ मैं ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ये इंस्पेक्शन वर्ड है, इन्हों आप हटा दिए। नो इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शंस नहीं हो रही हैं। बीएम्स और डीएम्स ਤੁਹਾਡੀ ਟੀम ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। बीएम्स और डीएम्स ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਐਜ ਏ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ बीएम्स और डीएम्स ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਸਸੀਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ BMs ਔਰ DMs ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਉਠਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ BMs ਔਰ DMs ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਈਏ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚਰਸ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਨੋਨ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ 7th ਕਲਾਸ ਔਰ 9th ਕਲਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਨੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਔਰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। विशा अध्यापक 8वीं जमात के विद्यार्थियों तक स्टडी मटीरियल का प्रिंट कढ़वा सकते हैं। ये जो कुछ मदद हो सकती सी डिपार्टमेंट वालों वो स्कूल मुखिया नूं भेजी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इनू तुसी वध तो वध ये स्टडी मटीरियल 8वीं जमात के विद्यार्थियों तक पहुँचाई जाए। तुहाडे वालों एक सुझाव आया है कि 8वीं जमात की बोर्ड की परीक्षा है और हुण जो है हुण 8वीं क्लास के बच्चों को भी स्कूल के बुलाया जाना चाहिए है। बहुत सारे अध्यापकों वालों एक डिमांड है, इसनों नोट किया हुआ है। बड़ी छेती इहदे बारे फैसला होगा, तुहानूं बिल्कुल दस दिता जाएगा जी। तुहाडा सारियां दा इन दी एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिहड़ी कि छूट गई हैं। मैं एक गल जरूर तुहानूं मैं यकीन भी दिलाना चाहांगा और दसना भी चाहांगा, साडे बहुत सारे टीचर्स दे ग्रीवांसिस आंदे हैं। साडी कोशिश है कि वो ग्रीवांसिस वध तो वध असीं दूर करिए। आई अश्योर यू वंस अगेन कि बड़े ईमानदारी नाल और बड़ी सिंसीयरिटी दे नाल तुहाडे जो भी जेन्युइन ग्रीवांसिस हैं महकमे दे रूल्स रेगूलेशन के हिसाब नाल जिन्हों भी रिजोल्व कर सकते होइए उन्हां नूं असीं लेके करांगे। इस मकसद दे नाल हर एक जिले दे विच एक नोडल अफसर लगाया गया है। मेरी सारे अध्यापकों नूं बेनती है कि जो भी चीज़ जो भी तुहाडा ग्रीवांस है वो तुसीं पोर्टल ते दर्ज करन तो बाद नाल अपने नोडल अफसर के नाल WhatsApp के राही भी भेज सकते हो और उन्होंने नाल टेलीफोन पर एक बारी गल करो उन्होंने ध्यान के जरूर एक बारी लेके आया करो। ये मेरी तुहानूं एक रिक्वेस्ट है क्योंकि जो ग्रीवांस पोर्टल पर आ जाता है नोडल अफसर के नाल मीटिंग होती है तो वो ग्रीवांसिस आपे ही फिर धीरे धीरे असी उन्होंने रिमूव करने की कोशिश करते हैं जिन्ने ज़्यादा वध तो वध जो हो सकते हैं। कितने कोर्ट केसिस वगैरह हैं, सीनियरिटी का एक इशू है अध्यापकों का, वो हाई कोर्ट के पेंडिंग है और उसके बारे कल मानयोग मुख्य सकत्तर जी मैडम जी ने एक मीटिंग रखी है। असी उस मीटिंग के जा रहे हैं, परसों है, कल नहीं 7 तारीख को मीटिंग उन्होंने रखी है। उन्होंने टाइम दिता है, सानू उम्मीद है कि ये कुछ न कुछ होएगा
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੇਕੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਲਾਈਕ ODL ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਵਟਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ 5 ਜਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, तो 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ 12 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तो ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ? ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਯੂਨਸ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਲ ਮੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। अपना इस वेले एक और जो काम चंगा चल रहा है, इस वेले 2-3 गल्लां और हैगियां ਜਿਹੜੀ कि ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। तो ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3,67,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ हैं ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਨਾਓ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। हाँ जी चलो 10th ਦਾ ਇਹ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ 50 ਸੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। तो ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ। ਨਾਓ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ 3rd ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ
19154 19,000 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं नहीं ये नहीं हो सकते, ये एरर है, ये एब्सेंट, ये गलत कर दिया गया। आई थिंक देर इज सम कैलकुलेशन एरर है, इतने बच्चे हो ही नहीं सकते। 106 या कुछ इतने बच्चे हैं, हाँ 106 107 8 10 बन गए। दैन 0 to 20 ਤੇ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ करनी चाहना, वो ये है कि 0 to 20 वाले जो बच्चे हैं सब्जेक्ट वाइज, जे इन्हों ਨੂੰ देखिए तो आई थिंक इंग्लिश तो स्टार्ट करिए आप कंप्यूटर साइंस जी इंग्लिश तो आप स्टार्ट करिए। सो इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ 0 to 20 76 ਬੱਚੇ और हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਬੱਚੇ, मैथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ 162 ਬੱਚੇ, दैन पंजाबी ए पंजाबी बी ਦੇ ਵਿੱਚ 23 और 20 ਬੱਚੇ और साइंस ਦੇ ਵਿੱਚ 19। ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। इसी तरह 21 ਤੋਂ 40 ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈਏ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SST ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੈ, SST एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो इंग्लिश मिसाल के तौर पर आप ले लें, तो इंग्लिश के विच ये 917 बच्चे 21 to 40%, तो टोटल बच्चे और 41 to 60% वाले बच्चे हैं, वो हैं 4033 बच्चे। तो ये बच्चे पास हैं। इन्होंने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने की लोड़ है, ज़्यादा वरी करने की लोड़ नहीं है। सिमिलरली 61 to 80% 3527 बच्चा, और 81 to 90 ये हैं 1264 बच्चे, और मोर देन 90% बच्चे जो है इंग्लिश के सब्जेक्ट के 623 बच्चे। तो इतने ये जो कहने का भाव ये है कि एक बेल टाइप कर्व बन जाता है। कहने का भाव है कि जेड़े बच्चों के जो मैक्सिमम बच्चे होंगे उन्होंने बच्चों के नंबर आपां नूं मिलणगे आम तौर पर 41 to 60%। फिर 60 तो उत्ते जाएंगे तो गिणती घटती जाएगी। इसी तरह 40 तो थल्ले नूं आवांगे तां भी गिणती बच्चों की घटती जाएगी, क्योंकि आपां नूं बच्चों नूं सारिआं नूं पास कराना है। इस करके इत्थे अपना टारगेट है 917 बच्चे, क्योंकि ये 917 बच्चे वो बच्चे हैं जिहदे किसी दे 22 नंबर होणगे, किसी दे 25 होणगे, किसी दे 28 होणगे। कहने का भाव है कि थोड़ा थोड़ा मदद चाहिए इन्हां बच्चों नूं, थोड़ा जिहा पुश चाहिए, थोड़ी जी मोटिवेशन चाहिए है, तो ये बच्चे बिल्कुल एकदम थ्रू हो सकते हैं और ये बच्चे सारे पास हो जाएंगे। तो जे और इन्हां बच्चों की फिर गिणती ये शामिल हो जाएगी 41 to 60 वाले बच्चों के जेड़े कि बच्चे ऑलरेडी पास हैं। तो साडा एक मिशन 100% का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। फिर अगली गल आपां करिए 0 to 20 वाले बच्चों की। तो 0 to 20 वाले बच्चे हैं इत्थे 76 बच्चे हैं, और ये 76 बच्चों के विचों 0 to 10 और 10 to 20 जे आपां फिर इनू बाइफरकेट करांगे तो ये एक गल देखने को मिलेगी कि थैंक यू 76 दे विच वध तो वध बच्चे इन्हां 76 दे विचों भी ज़्यादातर बच्चे आपां नूं 10 to 20% वाले मिलणगे। कहने का भाव किसी बच्चे दे 11 नंबर होणगे, किसी दे 12 होणगे, किसी दे 14 होणगे, किसी दे 15 होणगे। तो जे इन्हां बच्चों दे आपां पुश करांगे, इन्हां नूं थोड़ा जोर लगाएंगे, तो बजाय उस बच्चे के जिहदा 0 नंबर है या 2 नंबर है, इन्हां बच्चों ते आपां नूं लैस एफर्ट करने की लोड़ है। आपां अपना हिसाब किताब उत्थे ज़्यादा रखना है जिथे आपां नूं घट एफर्ट के नाल मैक्सिमम आउटपुट मिले, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो इस करके ये चीज़ बड़ी जरूरी है। दैन 90 तो उत्ते वाले बच्चे हैं, ये इस जिले के विच इंग्लिश सब्जेक्ट के 623 बच्चे हैं, और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 0.75 1% तो थोड़ी जी घट गिणती बनेगी इन्हां बच्चों, नहीं ज़्यादा ही बन जाएगी। 105 बच्चों ते 1% बनता है, तो 623 हैं, तकरीबन 6% बच्चे बनेंगे। तो ये थोड़ा 81 to 90 वाले बच्चे हैं, वो 1264 है, 12% के करीब बच्चे हैं। तो 12 to 13 थोड़े बच्चे उन्होंने दी जे कोशिश करांगे तो वो 90 वाली साइड दे विच इत्थे बच्चे आ जाएंगे। तो ये बच्चे साडे वो बच्चे हैं जो कि मैरिट वाले बच्चे हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने NTSC का एग्जाम भी दिता है। तो इन्हां बच्चों नूं जे एक विशेष तैयारी आपां कराइए तो ये बच्चे साडे मैरिट वाले बच्चे आ सकते हैं। बीच विचाले वाले बच्चे हैं, उन्हां दी जे एक जनरल मॉनिटरिंग आपां रखिए तो साडा जो एक एवरेज रिजल्ट है वो भी साडा इंप्रूव हो जाएगा। सो ये एक एनालिसिस है। इस तरह का एनालिसिस आपां अपने अपने स्कूल के लिए, अपने अपने सब्जेक्ट के लिए ये लिख करके रखना है। एक जस्ट एक छोटी जी मिसाल है बठिंडे जिले की, जो एक डेटा तुहाडे सामने साझा किया गया।
ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ मतलब ये एक जिले का एनालिसिस है, इसी तरह एक स्कूल का एनालिसिस भी बन जाएगा। कोई आप एक पर्टिकुलर स्कूल लाँगे तो स्कूल का एनालिसिस भी अपने सामने आ जाएगा और उस एनालिसिस के विच आपां ये अपना स्कूल वाइज अपना कर सकते हैं। बतौर स्कूल मुखी सारे सब्जैक्टां की अपनी जिम्मेवारी और सब्जैक्ट टीचर्स अपने अपने अपना सब्जैक्ट को संभालिए और अपने जो कुलीग्स हैगे आपां उन्हां दी भी मदद करिए। सो दिस इज़ वॉट अबाउट द एनालिसिस जी। सो ਹੁਣ 1 ਵਜ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ एनालिसिस। इसी तरीके ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ और SST ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ SST ਦਾ लिए तो तकरीबन ये 23 बच्चे इदां दे हैं ਜਿਹੜੇ कि एबसेंट ਸੀਗੇ, 106 बच्चे वो हैं ਜਿਹੜੇ कि 0 to 20 हैं, 20 to 40 जो बच्चे हैं वो 1382 बच्चे हैं। तो ये 1382 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ दैट इज़ माई ये मेरी सबमिशन है। सिमिलरली इन्हों दे जो आखिर च बच्चे 407 है, मेरे ख्याल से 407 बच्चा इदा का है जो 90% तो वध इन्होंने बच्चों के नंबर हैं, 90% तो वध। तो ये बच्चे मैरिट वाले बच्चे हैं, इन्होंने बच्चों को आप मैरिट के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो ये फोकस्ड कहने का भाव है कि हुण टाइम अपने को घट हैगा तो फोकस्ड अटेंशन आप देना। इन्ना सब कुछ कहते हुए आई थिंक कि 1:57 हुए एंड एज प्रोमिस्ड जो तुहाडे नाल शुरुआती तौर पर वादा सीगा कि 1 घंटे तो बाद आपां ये मीटिंग नहीं चलानी है। सो आई फिनिश इट हेयर। मैं तुहाडी इजाजत लेंदा और सारिया चीज़ों के लिए मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ही एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और मैनूं उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि ये जो अपने 2 महीने हैं, इन्हां 2 महीनों के विच मिशन 100% के सारे ऑब्जेक्टिव आपां अचीव करांगे हर हालत दे विच, ये पूरी उम्मीद है। पर नाल दी नाल मैं ये भी गल कहनी चाहांगा, किसी अध्यापक के खिलाफ, किसी स्कूल मुखी के खिलाफ किसी की कोई एक्सप्लेनेशन, कोई शोकोज नोटिस, कोई चार्जशीट वगैरह की बिल्कुल नहीं की जानी है, बिल्कुल नहीं होगी। दैट इज़ एन अश्योरेंस गिवन टू यू, बिल्कुल भी नहीं होगा। तुसी बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर आप जो कुछ काम कर सकते हो, जो कुछ अपनी बलबूते के मुताबिक कर सकते हो, आप उन्ना करना है। और ये तुहानू एक अश्योरेंस है किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। पर मैनू पूरा यकीन है कि लाजमी तौर पर अपने मिशन 100% के जो टारगेट्स हैं वो पिछले साल के नालों भी बेहतर आप ऐतकी करके दिखाएंगे। और इन दी एंड देर इज़ वन थिंग कि कोई किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। प्लीज़ डोंट बी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। हर एक समस्या का एक समाधान होता है। समस्या आती रही हैं, जाती रही हैं, बिल्कुल जान गया। हर कोई समस्या आती है, अपनी एक समाधान लेके आती है, अपना एक सोल्यूशन लेके आती है। समय के नाल सारी चीज़ों का हल होना है, हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जस्ट एक कोई गल आप ध्यान रखना है, आप हार्डवर्क करना है। जो अपनी कैपेसिटी है 100% जो मैं जिन्ना कर सकदा, अपन सारे ये सोचना है कि जो मैं कर सकदा है, कर सकती हैं, वो वध तो वध करना है, वो पूरा करना है। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर टू आवर सेल्व्स, ना कि किसी दूसरे को दिखाने दे बारे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ए नाइस डे। और तुहानू नवा साल एक बार फिर दोबारा बहुत बहुत मुबारक तुहानू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।